السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ایسے نبی جو 100 سال تک مردہ رہے پھر اس کے بعد زندہ ہو گئے، اللہ نے ایسا کیوں کیا اور پھر جب 100 سال بعد نیند سے جاگے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور حیران کر دینے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ ایک ایسے نبی کے بارے میں جانیں گے جن کی عمر صرف 40 سال ہے اور بیٹے کی عمر 118 سال ہے، اور پوتوں کا یہ حال ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اور دادا کے سر کے بال کالے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بالکل ہم یہ پورا یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب آپ اس پوری ویڈیو کو سنیں گے تو آپ اللہ کی قدرت پر حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے۔ علامہ اکرام نے اس ہستی کا نام عزیر علیہ السلام بتایا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بنی اسرائیل کی برائیاں بہت زیادہ ہو گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ وقت نور ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر میں رہنے والے 1 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا اور 1 لاکھ لوگوں کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1 لاکھ لوگوں کو گرفتار کر کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈی یعنی نوکرانی بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر بالکل میدان بنا ڈالا، ویران بنا ڈالا۔ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وقت نصر کون تھا؟ وقت نصر قوم املکہ کا ایک لڑکا تھا۔ یہ لڑکا قوم امالکہ کے وقت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا انہیں ملا، تو کیونکہ اس لڑکے کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا اسی لیے لوگوں نے اس کا نام وقت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کہیے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر بادشاہ کی طرف سے سب سے پہلے بابل کی سرزمین پر گورنر طے کیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد یہ دنیا کا ایسا بادشاہ بنا جس کی بادشاہت پوری دنیا میں تھی۔ اب واقعہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح وقت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر انہیں بڑا درد ہوا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں، انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر بہت زیادہ پھل آ چکے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بہت ہی افسوس کے ساتھ بے اختیار ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل پڑا جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس شہر کو آباد کرے گا۔ اسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے کچھ پھلوں کو توڑ کر کھایا اور انگور کو نچوڑ کر اس کا شیرہ پی لیا۔ ناظرین، انگور کو نچوڑنے کے بعد جو رس تیار ہوتا ہے اسے شیرہ کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنے چمڑے کی تھیلی میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں درندوں جنوں انسانی سب کی نگاہوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو غائب کر دیا تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ یہاں تک کہ 70 سال کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کھچے بنی اسرائیل کو جو بھاگ کر ادھر ادھر آباد ہو گئے تھے اس بادشاہ نے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغ لگا کر اس شہر کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال کے وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کر دیا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں سڑک پر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا، نہ پھلوں میں کوئی بدلاؤ آیا نہ شیرے میں کوئی بدبو، اور
आई न उसके जायके में कोई फ़र्क पैदा हुआ। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने यह भी देखा कि अब भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 साल है। आप हैरान होकर सोच में पड़े हुए थे कि आप पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई जिसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान किया है। और अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए उज़ैर, तुम कितने दिनों तक यहाँ ठहरे रहे? तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने यह सोच करके कहा कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो चुका है। उज़ैर ने यह जवाब दिया कि मैं दिन भर से कुछ कम सोता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं ए उज़ैर, तुम पूरे 100 साल तक यहाँ ठहरे रहे। तुम हमारी कुदरत का नज़ारा करने के लिए ज़रा अपने गधे को देखो कि उसकी हड्डियाँ गल सड़कर बिखर चुकी हैं, और अपने खाने की चीज़ों पर नज़र डालो कि उनमें कोई खराबी और बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। फिर इरशाद फरमाया, ए उज़ैर, अब तुम देखो किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। चुनाचे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हो गई, यानी हिलने डुलने लगी, और तुरंत ही तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोड़ से मिलकर गधे का ढांचा बन गया। और कुछ ही मिनट में उस ढांचे पर गोश्त भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। यह देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ऊंची आवाज से कहा, जिसका तर्जुमा है कि मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। उसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुँचे जहाँ 100 साल पहले आपका घर था। तो ना किसी ने आपको पहचाना, ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, यह देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत, अपाहिज औरत घर के पास बैठी हुई है, जिसने अपने बचपन में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उस बुढ़िया से पूछा कि क्या यही उज़ैर का घर है? तो उसने जवाब दिया, जी हाँ। फिर उस बुढ़िया ने कहा कि तुम उज़ैर की बात कर रहे हो, उनको तो 100 बरस हो गए हैं कि वह बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। यह कहकर बुढ़िया रोने लगी। तो हज़रत उज़ैर ने फरमाया, ए बुढ़िया, तुम क्यों रो रही हो? उस बुढ़िया ने कहा, मैं उज़ैर को याद करके रो रही हूँ। आज 100 साल का जमाना हो गया, वह बिल्कुल ही लापता हो गए हैं, किसी को उनके बारे में कोई खबर नहीं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुढ़िया, मैं ही उज़ैर अलैहिस्सलाम हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, आप उज़ैर कैसे हो सकते हैं? तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 साल तक मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे आदमी थे कि उनकी हर दुआ कबूल होती थी। अगर तुम वाकई उज़ैर हो तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालिज अच्छा हो जाए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गईं, उनमें रोशनी आ गई और उसका फालिज भी अच्छा हो गया। फिर उसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं गवाही देती हूँ कि आप यकीनन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। फिर वह बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ले में गई। इत्तेफाक से वह सब लोग एक मजलिस में थे और उसी मजलिस में आपका बेटा भी मौजूद था जो 118 साल का हो चुका था, और आपके कुछ पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे और उनके सर के बाल पक चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में गवाही दी और ऐलान किया कि ऐ लोगो, बिला सको सुबह यकीनन यह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में उनके लड़के ने कहा, मेरे बाप के दोनों कंधों के बीच काले रंग के बालों का एक गुच्छा था जो चांदी की शक्ल का था। अगर आप उज़ैर हैं तो आप मुझे दिखा दीजिए। चुनाचे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वह बालों का गुच्छा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तो तौरात शरीफ ज़बानी याद थी, आप अगर उज़ैर हैं तो ज़बानी तौरात पढ़कर सुनाइए। हज़रत उज़ैर ने बगैर किसी झिझक के फ़ौरन पूरी तौरात शरीफ पढ़कर सुना दी। यहाँ यह बात याद रखें कि वक्त नुस्र बादशाह ने जब बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया तो उस वक्त 400 तौरात शरीफ के आलिम को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था, और तौरात शरीफ की जितनी भी किताबें थीं उसने ज़मीन पर किसी को नहीं छोड़ा था। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के
सामने तौरात शरीफ को पढ़कर सुनाया तो यह सवाल पैदा हुआ कि हजरत उज़ैर ने तौरात सही पढ़ी है या नहीं, इसीलिए कि हमारे पास तो तौरात है ही नहीं कि हम यह जान सके कि उन्होंने सही पढ़ी है या गलत। तो एक शख्स ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को वक्त नुस्र ने गिरफ्तार किया था, उस दिन एक सुनसान जगह में एक अंगूर के दरख्त की जड़ में तौरात की एक किताब को दफन कर दिया गया था। तो अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह को बता दोगे तो मैं तौरात शरीफ की किताब निकाल कर ले आऊंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात पढ़ी है वह सही है या गलत। चुनाचे लोगों ने तलाश करके और जमीन को खोद करके तौरात शरीफ की किताब निकाल डाली तो हर्फ व हर्फ हजरत उज़ैर की ज़बानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वैसा ही पढ़ा जैसा कि तौरात शरीफ में लिखा हुआ था। यह अजीबोगरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक जवान होकर यह कहना शुरू कर दिया कि बेशक हजरत उज़ैर यही हैं और यकीनन यह खुदा के बेटे हैं। उसी दिन से यह गलत और मुशरिक अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज अल्लाह हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। चुनाचे आज तक दुनिया भर के यहूदी और झूठे अकीदे को खुदा के बेटे हैं। माज अल्लाह दोस्तों, यह बात आप याद रखें कि अल्लाह ताला माँ बाप बीवी औलाद से पाक है। तो अगर कोई यह कहे कि अल्लाह की कोई माँ है, अल्लाह का कोई बाप है, उसका कोई बेटा है, उसकी कोई बेटी है, तो यह शिर्क है जो गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। इंसान अल्लाह का बंदा हो सकता है, बेटा नहीं हो सकता। और यह भी याद रखें कि हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह हमें दोबारा जिंदा करने पर बड़ा कादिर है, बड़ी कुदरत वाला है। जैसा कि आपने इस वाक़े में सुना कि हजरत उज़ैर ने अपने गांव की बर्बादी को देखने के बाद कहा था कि अल्लाह ताला कैसे इस बस्ती को दोबारा जिंदा जिला जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उन्हें दिखा दिया कि कैसे अल्लाह ताला मौत के बाद दोबारा जिलाएगा। नाजरीन, हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और बहुत ही अच्छे तरीके में समझ में भी आ गई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।